We start second chapter of chemistry class 9th is matter around us pure. First of all, we discussed the following topics in the chapter. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्योर सब्सटेंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्प्योर सब्सटेंस दैट इज मिक्सचर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर कोलोइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड एट लास्ट separation of components of mixture. One more thing, this topic has been removed from syllabus due to COVID-19. One more thing, this is the only chapter is matter around us pure for term 1. Okay, now move to the topic that is the introduction. In the very first chapter, we have already discussed about matter and their states. Anything around us is called matter. And all the things can exist in form of solid, liquid or gas. The things which exist in solid, liquid and gas can be categorized into two parts, that is the pure substance and impure substance. Further, pure substance can be classified into two parts, that is the elements and compounds. Further, element can be classified into metals, non-metals and metalloids. And compounds also classified in organic compound and inorganic compound, organic and inorganic compound. Okay, impure substance is also categorized into two parts, that is the homogeneous mixture and heterogeneous mixture. In homogeneous mixture we have to study about solution, and heterogeneous mixture we have to study about colloidal solution and suspension. Now let's start the chapter. जैसा कि आपको बताया कि पहले चैप्टर में हमें मैटर के बारे में जानना था, मैटर के स्टेट्स के बारे में जानना था, है ना। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. इट मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फॉर एग्जाम्पल सैंड, शुगर, वाटर, एयर, चेयर, ऑक्सीजन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ये जो एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं, ये सबस्टेंस या तो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर इम्प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो क्या कंडीशन है, किस तरह के सबस्टेंस को हम, शुगर है, सैंड, वाटर, एयर, चेयर, इनमें से कौन सा सबस्टेंस प्योर होगा और क्यों हम इसे प्योर क्यों कहेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं. मीन्स डैट व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सबस्टेंस. आम लोगों के लिए प्योर का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई मिलावट ना हो. मीन्स दैट फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, having no impurities, that is called pure substance. For example, pure milk, pure salt, pure juice, pure ghee, these are pure for a common person. But according to science, all these things are impure in nature. Why? Because these things made up of two or more than two substances. So this is impure in nature according to science. Science says something is pure means it contains only one kind of particles. Means that a pure substance may be defined as a material which contains only one kind of particles, that is atom or molecule. Okay, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि प्योर सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज एटम और मॉलिक्यूल्स. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, जो हम आगे जानेंगे.
है ना। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शुगर, आयरन, वाटर, ये प्योर सब्सटेंस है। क्या ये सब्सटेंस प्योर है तो क्या इनके पास कोई प्रॉपर्टीज है? हम किस आधार पे कहेंगे कि ये प्योर है? लेट अस डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, all the constituent particles are same in their chemical nature in the pure substance. प्योर सब्सटेंस में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे सारे का केमिकल नेचर क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन, सपोज दैट वी हैव अ आयरन नेल, तो वी हैव अ आयरन नेल मीन्स दैट इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस आयरन नेल में, सारे पार्टिकल्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा। वाटर, वाटर water is a pure substance. How can you say? Because each and every molecules are identical in nature. वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल नेचर के होंगे। इज इट क्लियर? सेकेंड, प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनियस थ्रू आउट, मीन्स दैट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। सपोज दैट example sodium chloride. Sodium chloride is a pure substance because it represents only one kind of matter and its composition is same throughout. उसका जो composition है throughout क्या होगा? Same होगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि water H2O is a pure substance since it has uniform composition throughout. उसका composition क्या है? Throughout uniform है, जो आपको सेकेंड प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेगा। अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनियस थ्रू आउट। नाउ थर्ड इज प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो भी प्योर सब्सटेंस होंगे जैसे शुगर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सॉल्ट हो गया, जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होंगे सारे के पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनिट होगा। या फिर जिस भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनिट है, फिक्स्ड है, पार्टिकुलर है, वो सारे क्या कहलाएंगे? प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। ओके, नाउ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। फर्दर जितने भी प्योर सब्सटेंस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सो जब भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का क्या एग्जाम्पल है, तो आप क्या बताएंगे? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आप किसी भी एलिमेंट्स का नाम बता सकते हैं, किसी भी कंपाउंड्स का नाम बता सकते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होगा? प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल होगा। इज इट क्लियर? जैसे आपसे कहा जाए सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑल आर प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड की बात करें, कोई भी एसिड्स कह ले, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, H2O, ऑल कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। एंड ये जो भी कंपाउंड हमने मेंशन किया, सपोज दैट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तरफ कार्बन की बात करें, तो ये दोनों ही सब्सटेंस, ये जो चार प्रॉपर्टीज आपको दिखाया गया, सॉरी तीन प्रॉपर्टीज जो दिखाया गया, इन तीनों प्रॉपर्टीज को वो फुलफिल करता है। दैट्स द रीजन कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्योर सब्सटेंस। ओके, फाइनली प्योर सब्सटेंस that is made up of only one kind of particles, only one kind of atoms या फिर only one kind of molecules. Okay, now in the next lecture we discuss about the impure substance and their properties.